So, thank you so much for having. Can I say something now or should I just be silent? Say something now, like you always like say. So you can say something now and then later as well. I think I'll just say it. I just want to first of all thank Z. They're calling me a judge, but I don't think of myself like that. I'm just going to come for 2 episodes on this show as a friend to all the contestants. Bollywood buddy, that's how I introduced you. I'll try and be nice. I was in their place 2 years ago when I auditioned for my film, and I managed to do 3-4 films after that. I hope that somebody or at least a few from all these contestants all get films and do very well in their life. I'm just going to try and be the nice one because we've told Victor sir to be the bad one. Anyway, I hope you guys have fun. So we have a little more of Paraniti a little later in the evening. And finally, a very young and talented actor who has done the entire journey. I want to say something? Yeah, it was the spring of 2003 when I auditioned for The Sinestarski Coach Season 1. And I was rejected. I was rejected in the regional round. I'm a reject from this show, so it's quite surreal that I'm on the panel as a friend, as a Bollywood buddy this time. And in 2003, I remember I was this nerdy looking guy with specs, thin, not 6 feet tall, conventional hero. And rest of the guys, top 10 in Chandigarh, was 6 feet plus. It was the average height of Chandigarh men, 4 inches, at least 4 inches more than normal blokes across the country. So that was started 10 years back, but now the times have changed. I think this is the golden era of Indian cinema. We have gone beyond nepotism, and this is the time anybody with a decent amount of talent can be there, be an actor, doors are open. And I think I've said this umpteen times that this is the golden era of Indian cinema. Anybody can be an actor. And I think success is when preparation meets opportunity. And there's no dearth of preparation made by young talented actors across the length and breadth of the country. They just need that opportunity, which is given by this particular show, Sinestarski Coach. Thank you. It's a pleasure being part of the service. And before we proceed, a very small look, a quick look at some of the audition talent from India's Best Sinestarski Coach, the latest season. Clearly see there's a deluge of talent waiting to burst onto your TV screens, and they have such a fans. We'll get the mic to you. Let's start right away. Ranjini. Yes, please. I have a question for you. You said that you got rejected in the year 2003 in Sinestarski Coach. So what was the reason behind it? I have no idea. I think this is the age of unconventionals. And I'm quite unconventional, I think. But that time, when I was in teens, I was 19 that time, I think, 2004. I was this unconventional guy out of these 10 people, as I mentioned, and I was not a 6 feet tall conventional hero that time. And I was hardly given a chance to speak because I just looked odd in the company of 10 tall, modern-looking guys from Chandigarh. Maybe you didn't have a great judge yet. Yeah. So did you ever You thought? won this, I'll be there one. So did you ever thought that one day you will mentor all the contestants? Not at all. I don't expect much from life, but this is quite surreal for me. Coming on the same show as a mentor or as a friend, as a guide, where I was rejected in the regional round. Thank you. About 2 things I wanted to know. One, is it called a reality show? And if it's reality, what reality? Can you repeat that, This please? show, this particular aspect is called a reality show? There is a non-fiction reality show, yes. What is the question? That's it. I mean, reality is based on what? Normally, reality shows are reality shows, or they are directed and they are. Who is this question addressed to? It's a general question. Yeah, so I'll just take that very quickly. Reality show is actually a term that's been coined by the media, not by the makers. The makers always call these shows as non-fiction shows. They are actually talent hunts. So we don't call them reality shows. Reality show is a loose term that has been coined by the media, and maybe it's percolated down to the audience. But in a sense, it works because the shows represent reality. None of this is engineered. None of this is scripted or directed. So these are unscripted shows, if one can define that further.
Thank you, sir. That is what I expected, and I think it is part reality and part, of course, is unscripted. The next is, okay, what would happen after the final selection? How far, where, and what will these winners do? Yeah, so we have a so typically the winners of Cinestars are supported by Z in their endeavor to becoming movie stars or at least getting an exposure into the film industry. We do have plans regarding film projects for the winners, but those plans will be announced a few weeks from now. Hi, so the question is to the Z team here. I remember one edition of Cinestars at least. Can there be some clarity? Did you have one season before this or was We there had two more? seasons, 2004 and 2006. Okay. 2 seasons. The next question. हेलो The guy in red. हेलो अभिता जी गुड इवनिंग मैं मनोज कुमार साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से भारत देश सर आपसे एक क्वेश्चन था कि सीजन 1 जो इसका जो फर्स्ट जो हुआ सीरीज स्टार में उसमें सर्वर आहूजा और जो अदिति शर्मा थी उनका जो अगर कैरियर अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं अदिति शर्मा तो खैर अभी कैरेक्टर रोल अभी कर रही है उसके बाद सर्वर आहूजा जो है वो धारावाहिक में एक दो एपिसोड में आने के बाद वो भी मतलब गुमसा हो गए तो अभी सीजन 2 में किस प्रकार से मतलब आगे और कितना परफॉर्मेंस दे पाएंगे और सीजन 2 कहाँ तक प्रतिभागियों के लिए बेस्ट होगा। लाइट कम किया। देखिए पिछले सीजन में क्या हुआ उसके बारे में ये सब मेरे लिए भी उतनी खबरें जितनी शायद आपके पास। मुझे लगता है कि आज हम जिस शो की बातें कर रहे हैं उम्मीद ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ एक अनाउंसमेंट होगी। मुझे लगता है कि हम हमेशा कहते हैं कि देश में टैलेंट बहुत है और शायद वो हम तक पहुंचता देर में है या उसको जरिया नहीं मिलता। तो उम्मीद ये है कि इस शो की वजह से कुछ ऐसी चीजें जिससे जो हमें देखने को मिलेंगी शायद हम उससे कुछ सीखेंगे। उसका करियर कैसा बनेगा क्या बनेगा ये तो मेरे ख्याल से वक्त ही बताएगा। वो माइक लेके बीच में हटा लो या नमित आपके सामने लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट नमित इस शो का असल मोटिव क्या है? किस किस्म के कलाकारों को एक मुकम्मल मंच मतलब प्रदान करना है? और इसके बाद सवाल होगा विजय कृष्ण जी से। विक्टर आपने क्या महसूस किया है कि जितना टैलेंट है उतना कंज्यूम करने की कैपेसिटी है इंडस्ट्री में या फिर डिमांड एंड सप्लाई का मतलब एकदम उसकी खाई बहुत ज्यादा गहरी है? आपका जो ये सवाल को पुटअप करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए इस किस्म का टैलेंट ये डिफाइनेबल टैलेंट नहीं। कोई गाना गाता है तो आप बोल सकते हैं यार ये अच्छा गाना गाता है, ये अच्छा गाना नहीं गाता। एक्टिंग एक ऐसी चीज है ये रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, ये आपके अपने जाती एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि टैलेंट की तो हमेशा कमी होगी। टैलेंट हमेशा आदमी ढूंढता है कि अरे कोई अच्छा एक्टर मिले, कोई अच्छा कैरेक्टर मिले। आप जिस तरह की हम नई फिल्में देख रहे हैं मुझे लगता है कि टैलेंट अच्छा होगा तो उसको खपने में तकलीफ नहीं आएगी। कितना वक्त लगेगा वो कितनी क्योंकि ये मैथ इसकी एक गणित बनाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जब तक ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा सफल ना हो और दुनिया के सामने एक अच्छे रूप में ना आए तब तक हम इस सवाल का कोई कॉन्क्रीट जवाब देना आज मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी जिसके पास टैलेंट है और जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएगा उम्मीद है कि हम उसको पहचान पाएंगे और उम्मीद ये है कि उसको फिल्मों में टेलीविजन में कहीं ना कहीं एक स्टार जो आप ढूंढ रहे हैं, आप स्टार एक्टर भी होता है और स्टार्स वो भी होते हैं जिनको देखने के लिए आप पहले दिन टिकट खरीद के फिल्मों में जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड ट्राई एंड फाइंड अ गुड टैलेंट पूल ऑफ एक्टर्स and hopefully they will find their place. अगर मैं hypothetically पूछूं कि मतलब धूम 3 fans है, I think Dhoom will always, from this point on, Dhoom will always require an actor of a certain standing. I think even
even in Dhoom 2, I think Hrithik, Abhishek, I think they're very, very fine actors. लेकिन जब भी हम इस किस्म की फिल्म की बात करते हैं, conventional and unconventional, I think, are things which also change with time. Hopefully, by the time the next Dhoom comes, maybe it will be very unconventional. Who the hell knows? And yours, Namit, yeah. What is या क्या कुछ? मोटिव ये है कि टैलेंट निकालना है और होपफुली उन्हें सिनेस्टार बनाना है. मोटिव ये है. और टैलेंट की कोई शक्ल या शेप नहीं होती है डिफाइंड. टैलेंट comes in many shapes and sizes, like Victor just said that what is conventional, what is unconventional can change every day. So 10 years ago, what was not acceptable to a talent show is loved and appreciated by the film industry today and the audience. Therefore, it's important to see the show from that point of view. Is that we are here to appreciate and celebrate whatever type of acting talent is available in the country right now and shape it and help give it a certain future. That's the job of the show. I'm Jyoti Venkatesh here. Hard way, as you said, without belonging to Bollywood, you belong to Bollywood now. Would you advocate newcomers Jojo aate is show me for the test to go through a crash course in PR also, since you were part of a PR outfit in the beginning? Oh God. No, I would not advise them that. In fact, now जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या मैं बैंकिंग और फाइनेंस इतने साल करती रही, शायद मुझे फिल्म्स पढ़नी चाहिए थी. बट मैं ये भी बोलती हूँ कि एक्चुअली एक्टर बनने का कोई रूल नहीं है. आप एक डीजे हो सकते हैं और आप एक्टर बन सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप एक बैंकर हो सकते हैं आप. तो आई डोंट थिंक कोई रूल बुक है. और मैं तो ये एपिसोड शूट कर चुकी हूँ और मैंने देखा कि कैसे कैसे सेक्टर्स से लोग आ रहे थे ऑडिशन करने एंड उनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा. कोई स्कूटर मैकेनिक था, कोई स्टूडेंट था, कोई हाउसवाइफ थी जिनका अभी बच्चा हुआ है, एक तो आपने देखा रोबोटिक प्रोफेसर थे. ये सब लोग इतने तरह के सेक्टर से आए कि उनकी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा. तो मैं तो उनको यही कहूँगी PR सब छोड़ो, ऑडिशन करना शुरू करो, कभी तो चांस लग ही जाएगा. Naveen, congratulations. And in fact, for the audience, I would like to inform that उस time Sarwar Ahuja के अलावा a brilliant actress in Marathi was emerged from this show, Amrita Kanvilkar. Yes. वो top की Marathi actress है. As a matter of fact, from the entire batch of 2004, all the top 10 from 2004 have been absorbed in television, regional films and modeling. Because at that time, Bollywood had not opened its doors to newer faces with the way it is doing today. So there was a very good talent pool available, they were groomed well, and a lot of the leading television actors, models and regional film stars have actually come from the 2004 pool of Cinestars Ki Khoj. And in spite of that, why this was not continued year after year? So that's a question that I cannot answer because that's a question that my predecessors have to answer. But I can just tell you that we are here now, we are doing this, and let's be happy about it. Also, are you planning to simulcast this in different language channels, because he has a bouquet of channels? Because currently it's only being broadcast in Hindi. Eventually you will turn to other languages because there are cinema in other languages also. Yeah, why not? But time will tell whether we do that or not. So. And Ayushman, what exactly we're will going you to last advise? 5 minutes of the open forum, so I would request anybody else who wants to do it in the open forum to please raise your hands, and we'll have to stick to a number of people. Please. Thank you. The next question, please. I'm shooting more. What are the advices that you all would give to the contestants? मैंने उनको यही कहा था कि I mean, see, whether a contestant is good or not, I think the main decisions I was leaving to the senior judges, which is Victor sir and Sonali. I was more advising them on my personal experience कि अगर आप ऐसा set पे करोगे क्या होगा. So my advice was actually according to whichever contestant came. But overall, I think if the contestant is good, then I would say, okay, stick to this, really make time out for this, and run after it, because that's what I did in my life. And if the judges feel that no, you do not have a future in films, then please do not leave your current jobs or ghar bar chhod ke mat aa jana.
ऐसा कुछ मत कर देना. So we were giving very real advice is what I think. यहाँ पे दो तरह के ऑडिशंस होते हैं. एक ऑडिशन जब आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, आपको होल्ड फ्लेक्स आपका नेम, हाइट, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, स्ट्रेट प्रोफाइल, वो अलग होता है. एक स्टेज पे ऑडिशन होते हैं, वो अलग होता है. रियलिटी शो में जितने कर चुका है, आई कैन कॉल माय सेल्फ एज अ रियलिटी शो एक्सपर्ट. जितने ऑडिशन, जितने रियलिटी शोज में मैं जा चुका हूँ, जितना रिजेक्शन मैंने फेस किया होता है शायद किसी ने किया होगा, और मैं उनके साथ बिल्कुल एम्पैथाइज कर पाऊंगा. सो आई थिंक I can be their friend, their party, friend, philosopher, guide, whatever, and I'll be with them. Okay, and this is just one question. I just want a reaction from the two of you. How important do you think is the road safety for the youth today? Road safety. I think that's very irrelevant. We need to. Yeah. Hi. Hi, Ayushman. So basically this show is based on talent, correct? So, and you belong to a non-filmy background. So my question is basically, right now in Bollywood, what does it matter exactly? Talent or filmy connection? Whatever you are right now, it's totally because of talent, correct? So right now in Bollywood, what is going on basically? Filmy background connection or talent? A lot of filmy people are very talented, probably more talented than me. I think it's difficult to generalize that, but I think it's also the opportunity. You should get the right opportunity, be at the right place at the right time. And I think this is the age where it's open to all. It's beyond nepotism. You know, even if you're decently talented, you have the potential to be an actor on the silver screen if you get the right opportunity. That's it. I would really like to say something, please. Sorry. I just wanted to say that whether you have a filmy connection or not, you have to be talented. I'll tell you why. Because your mothers and fathers are not watching the film and buying those tickets. It's the audience. And audience doesn't care who your father or mother or sister or brother is. So I think only talent counts in this industry, nothing else. Absolutely. Very well said. Ayushman, hi. Guys, This is we don't have to wrap Salma here the Q&A from. now. Anu, Hello. 1 second, please. Yeah. Hi, We Salma, waited how are you? 2 hours. Yeah. Okay. Can I? Yeah. What's up? Okay. Ayushman, you think कि एक शो में ऑडिशन करने से, एक विनर बनने से आपको करियर में बहुत कुछ फायदा आगे हो सकता है? You agree on this? मुझे लगता है काफी ऐसे भी एक्टर हैं या फिर ऐसे परफॉर्मर्स हैं स्क्रीन पर जिनको रिजेक्शन ज्यादा मिली है एक्सेप्टेंस से. मुझे ज्यादा रिजेक्शन मिली है लाइफ. एक टैलेंट शो जीता है, वो एक रियलिटी शो जीता है, वो रूबीज है, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं. इनफैक्ट वो एक्टिंग टैलेंट से, कैसे टैलेंट, हाँ परफॉर्मिंग टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है. ऑफ कोर्स वो एडवेंचर शो है, आप या फिर अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप डायनेमिक्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है. तो मुझे लगता है कि हाँ टैलेंट शो से ऑफ कोर्स अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर अगर आप उस मोमेंट से क्लिक करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू अगर आप थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं कोई स्टेज पर कि आप अच्छा गाना ना गा पाए, अच्छी एक्टिंग ना कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं है. एक परिस्थिति में, एक सर्कमस्टेंस में हो सकता है कि आप नर्वस हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. तो आई थिंक वहाँ पे एक डेस्टिनी अलग भी मैटर करता है. तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट वेग, इट्स क्वाइट रैंडम, इट्स रैंडम वर्ल्ड. कि आर्टिस्ट का बहुत सब्जेक्टिव रिलेशनशिप होता है परफॉर्मेंस के साथ. अभी विक्टर जी ने जैसे बोला था कि आप एक्टिंग को गेज नहीं कर पाते, सिंगिंग को शायद फिर भी कर पाए, डांसिंग को फिर भी कर पाए. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज. आई थिंक जजेस को बहुत मुश्किल होने वाली है विनर सेलेक्ट करने की. परिणीत, do you think कि लक मैटर करता है आपके हार्डवर्क के साथ भी इस करियर में, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए? लक मैटर करता है नहीं? हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक एक अमैलगमेशन होता है हर चीज़ का. क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको एक्टिंग से प्यार हो जाता है, एज एन एक्टर आप 100 फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस आपसे बोर हो गई है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते. एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है बिकॉज लोग उनकी टिकट नहीं खरीदते. तो आई थिंक वो लक होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए ऑडियंस में आपके लिए. हार्डवर्क डेफिनेटली, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होगा. तो एक आई थिंक एक अमैलगमेशन होता है हर चीज़ का. एंड बस फिर ऊपर वाला आपका ध्यान रखेगा. Friends, if we are looking at doing any group interaction, Juhi, this is in the best interest of the entire lot here. So we have to end the open forum Q&A now. One last question from us. You just do the last question. Okay. परिणीति, आपको अपना पहला रिजेक्शन और पहला ऑडिशन याद है? और क्या फीलिंग थी उस समय? जी, एक्चुअली मैंने लाइफ में एक ही ऑडिशन दिया है. वो रिकी बैग के लिए था और मुझे पता नहीं था कि वो ऑडिशन है मेरा. और उसमें मैं एक्सेप्ट हो गई थी. तो टचवुड अभी तक उसमें रिजेक्शन नहीं मिला है. तो Okay. Friends, before we proceed into the group interactions, there's a very cute photo op that we have with our artists here. Can I please have the clapboard immediately brought onto the stage? Great. Very great.
चलो बैठे रहो। मैं अभी से बता रही हूँ, मैं एक घर लेके जा रही हूँ, अभी से बोल चुकी हूँ मैं। I've called it now, guys. Done. नहीं मिलेगा। She's managing to keep this in the car. ओए मोबाइल नीचे। मोबाइल पे जाएगा, ऐसा हो गया स्टोर वाले नहीं उठ रहे, मोबाइल जा रहे उठ रहे। किधर है रे? Thank you so much, guys. Now we're going to have Pariniti at the head table here on the right hand side. So almost. So, yes, Pariniti at the front table over here, the head table. While Ayushman stays on stage, please. The electronic media is requested. Ayush. The electronic media is requested to come to the front stage for a group fight with Ayushman. आयुष्मान इधर। Guys, everybody on the train not taking up the ride. चलो सोलो यार गाइस। ओके Can you start please? Okay, okay. अरे आयुष्मान tell us your like जब आपके सामने ये बात रखी गई थी क्या? Sorry. I see silence. हाँ। What's happening? चलो ओके आयुष्मान स्टार्ट सॉरी आपके सामने जब ये पहला प्रपोजल आया था तब व्हाट वाज योर रिएक्शन कि आपको किस तरह से इनफैक्ट ये प्रॉपर प्रपोजल नहीं है, ये 2 एपिसोड्स के लिए मैं और परिणीति एज अ फ्रेंड जा रहे हैं, एज अ बडीज जा रहे हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट पहला रियलिटी शो था जिसमें मैं प्रोजेक्ट हुआ था, तो अब मैं उसमें एज अ मेंटोर, एज अ जज या फिर एज अ फ्रेंड वहाँ पर जा रहा हूँ। इट फील्स ग्रेट। रिजेक्शन इतनी मिल चुकी है लाइफ में कि डरना बंद हो चुका हूँ, मैं फियरलेस हो चुका हूँ बिल्कुल, तो मैं रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। आई एम प्रीटी नम टू सक्सेस एंड फेलियर। आयुष्मान जब आपको रिजेक्ट किया गया था तो आपको लगता है कि आप 10 आई थिंक टैलेंट आप जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे टैलेंटेड बनते हैं, और जितना आप परफॉर्म करते हैं, जितना आप में रियाज होता है एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस यू डू। जिस तरह से आपके साथ हुआ था, आज आप स्टार है लेकिन प्लेटफॉर्म आज मिल रहा है, तो कुछ जो जजेस हैं उनको तो कुछ बोलेंगे ताकि नाइंसाफी ना हो जो आपके साथ। आई थिंक राइट नाउ ऑडियंसेस आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, जो कंटेस्टेंट्स है बहुत फॉर्चुनेट है, बिकॉज देव गॉट एरे ऑफ रियलिटी शोज जो जिसमें वो अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। आप ये देखेंगे जो टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स दूसरे रियलिटी शो में थे वो इवेंट्स के जरिए काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, एंड दे डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई थिंक ये रियलिटी शो जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं बहुत टैलेंटेड लोगों को। जॉन जिस तरह से एक्टर से प्रोड्यूसर बने, अगर ये शो खत्म होते होते इसका विनर अगर एक्टर बनता है, अगर प्रोड्यूसर साइन करेंगे। यार अभी मैं खुद सीख रहा हूँ एक्टिंग, सिंगिंग, ये अभी मैं प्रोड्यूसर बनने में बहुत देर है। रियलिटी शोज में से जो लोग भी निकलते हैं जरूरी है हर कोई आप इतना सक्सेसफुल बन पाए, तो जो फॉर एग्जांपल टॉप 10 जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, आपको लगता है जो बाकी लोग हैं, बाकी के 9 कंटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए क्या जगह बचती है? आई थिंक कभी कभी हम थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं रियलिटी शोज़ में। कभी कभी ये होता है कि आप खुद अपने आसपास एक लाला लैंड बना लेते हैं, एक वर्ल्ड बना लेते हैं, यू थिंक दैट यू आर समबडी, यू आर सुपरस्टार। ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। आई थिंक इट चेंजेस एवरी ईयर, इट चेंजेस एवरी डे। आपकी किस्मत हर रोज़ बदलती है, आप अपने परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी रैंडम इन अ वे। तो आपको आई थिंक यू शुड हैव अ स्टेबल माइंड व्हेन यू इन अ रियलिटी शो। आपको ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है रियलिटी शो खत्म करने के बाद आपको पूछे ही ना। सो यू हैव टू हैव दैट सैनिटी। Ayushman, but you know, eventually it's a reality show, and not everyone of whoever participates will make it big in the industry. It's only 1 in a million who would get selected. It's that one lucky one. So it is no matter what it is. I think now there are million. Reality. In fact, there are a lot of reality shows as well. I think अगर आप एक रियलिटी शो में रिजेक्ट होते हैं, आपके पास 10 और होंगे, लेकिन दिस पर्टिकुलर रियलिटी शो इट्स वेरी यूनिक, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि एक्टिंग का रियलिटी शो नहीं होता। एक्टर्स जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं, एक्टिंग सब्जेक्टिव होती है, तो गेज करना मुश्किल हो जाता है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक रियलिटी शो। But no matter, even if the show one of a
not everyone will make it big. So don't you think that reality somewhere affects the... I think this is reality as well. आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है. Everybody cannot be a superstar. I think अब आपके हाथ में है कि आप एक्टर बन जाओ. सुपरस्टार आप बनोगे कि नहीं बनोगे ऊपर वाले के हाथ में या फिर जनता के हाथ में. आयुष्मान जी कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में गॉडफादर ना हो तो इतनी जल्दी से सक्सेस नहीं मिल पाता. आउट ऑफ 10 में आपसे मार्केट में पूछूं तो टैलेंट और गॉडफादर को कितने मार्क्स दें? I think it's bit of both. I think more than Godfather, I think मुझे लगता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी ये दोनों एक साथ जाने चाहिए. काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो विदाउट गॉडफादर यहाँ पर आए थे इंडस्ट्री में और अभी तक सुपरस्टार्स हैं वो. आई थिंक यू जस्ट नीड दैट गाइडेंस ईदर फ्रॉम योर पेरेंट्स. योर गॉडफादर कैन ऑल्सो बी योर टीचर, योर फ्रेंड, एनीबडी कैन बी योर गॉडफादर. आयुष्मान, एक हटके सवाल है. बजट आ रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? Listen, I was never I've studied English literature. I have no idea about the budget. I have no idea about the economy. But apart from that, I think. आम जनता महंगाई इतनी बढ़ रही है, अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं किसी चीज के लिए कुछ खरीदते हैं तो आप क्या सोचते हैं आपके लिए बजट कितना जरूरी है? अगर एंटरटेनमेंट की भी बात करें. Having said that I have no idea about the economy, but इतना मैं जानता हूँ कि आम जनता को के लिए बजट होना चाहिए. उसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बजट का फ़र्क नहीं पड़ता है. आई थिंक जो ऊपरी तबके के लोग हैं, हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, उनको बजट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आम आदमी को ज़्यादा पड़ता है. आई थिंक इट शुड बी pro common man, always should be pro common. हाँ? अरे बता दिया. वो लग था अच्छा हुआ है बुरा. Okay, आयुष्मान, I just need a reaction. जब कोई स्टार्स किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसता है या केस में फंसता है, आपको लगता है वो स्टार्स है और सेलिब्रिटी इसलिए उसको ज्यादा हाइप किया जाता है? आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. अगर आप स्टार हैं आपको अपलॉज भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा, एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा. आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर दैट. और ऐसा होता है कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट ऑल्सो. आयुष्मान, अपेरेंटली हमारा बजाज हैज बीन शेल्फ जो I think you'll be hearing about it very soon. Okay, and you've been learning a lot of Bhojpuri themes, right? Yeah. कितना सीखे आप? काफ़ी कुछ सीख लिए. अब वो आपको भोजपुरी में ऐसा कुछ खड़ी बोली है, भोजपुरी नहीं है, वेस्टर्न यूपी की बोली है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली भोजपुरी. वो बिहार की तरफ नहीं है. ऋषिकेश हरिद्वार में जो बोली जाती है वो वाली भाषा है. तो सिंस आई एम गुड विद हिंदी, आई एम गुड विद संस्कृत, सो इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी. दम लगा के आयशा कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट एडिट होने वाली है. इट विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. आई थिंक मेरा मेंटोर दो हैं, एक सुजीत सरकार है, दूसरे आदित्य चोपड़ा है. आई थिंक बेसिक विजडम. डिस्पाइट आई थिंक टैलेंट के अलावा अगर आप में थोड़ी सी विजडम है कि आप चॉइसेस ठीक रखें या फिर अपना माइंड थोड़ा सा सेम रखें, आपको किस तरह बिहेव करना है पब्लिक में वो आना चाहिए. आई थिंक ये 2-3 छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती हैं. आई थिंक वो बहुत कम आती है. Thank you. Thank you so much. What's up? Seems like you're bringing sexy back. Listen, were you roaming around in Times Square in New York at some point? I think I saw you. Must be me only. I think I saw you, but it was raining, so I was like, अब मैं मिलने नहीं जा सकती. अच्छा, listen, Parvati. हाँ. Seems like you're bringing sexy back. यही मेरा प्लान था. Thank you. I hope that's a compliment. Of course it is. You've been working out a lot, right? But I want to say I've been working out a lot, huh? Because there is a story परिणीति कि आप अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपना वजन कम कर रहे हैं. Is that true? ओके, आई एम लुकिंग सेंडर. और नहीं, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे 2 साल हुए हैं और मेरा पूरा पहला साल इसी में बीता कि अरे अच्छे कपड़े नहीं पहनती और ये अपना वेट नहीं कम करती. तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उससे, क्योंकि मैंने कहा आप मेरी एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, आप मेरे कपड़ों के बारे में भी कहें. तो मैं उससे परेशान हो गई. तो मैंने कहा अब मैं फैशन में इंटरेस्ट लेने वाली हूँ और मैं वज़न कम करने वाली हूँ. तो आई थिंक वो शायद थोड़ा दिख रहा है अब. यस, आलिया इज माई जिम ट्रेनर. वो खुद मुझे ट्रेनिंग करवाती है जिम में. नहीं, नॉट एट ऑल. Okay. परिणीति, Bollywood buddy, right? That buddy friend. Yes, Bollywood buddy. Yeah, बन गया है. तो क्या चीज़ आप देख रहे हो जब न्यू कमर्स आपके सामने आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो
क्या क्वालिटीज आप उनमें देख रहे हो? यू नो एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लगा था पहले दिन शूटिंग पे, क्योंकि मैंने कहा मैं कौन से एक्सपीरियंस से जज बन गई, यू नो, क्योंकि आपको हमेशा अजीब लगता है कि आप किस औकात से आप जज बन रहे हैं। मैंने जब पहला कंटेस्टेंट देखा तो मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पर्सनल एडवाइस दी कि यू नो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेट पे ऐसे होते तो आप ऐसे करते ऐसे, एंड उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जज बनने की ज़रूरत नहीं है। यू नो आई कैन जस्ट बी कि जैसे उन्होंने मेरे एक रूम में उनको मुझे दिखाया कुछ करके और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ, यू नो। तो आई थिंक उस औकात से आई थिंक मैं उनकी दोस्त हूँ, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दूंगी बस। Pariniti, every Friday there are a lot of star daughters and star sons just making their entry in the Bollywood. Yes. Sorry, please थोड़ा साइलेंस रखिए। Yeah. So do you think that Bollywood is just getting a bias like to the stars and daughters? No, not at all. I don't think so. क्योंकि यू नो आई थिंक जो लोग एक्टर्स नहीं हैं या जो लोग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, उनको लगता है अरे ये तो उसकी बहन है और ये तो उसके बारे तो उसको तो फिल्म मिल गई होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो आप में इन्वेस्ट करता है। तो आजकल तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसीजन लेता है, वो जो डायरेक्टर है वो खुद डिसीजन लेता है कि आप कैरेक्टर के लिए सही हैं या नहीं। तो आई डोंट थिंक कोई बायस है एट ऑल। आई थिंक वो लोग भी उन लोगों को ही लॉन्च कर रहे हैं जिनको जो उनकी फिल्म को कोई फ़ायदा करें, जो ऑडियंस को पसंद आए। आई डोंट थिंक कोई बायस है, मुझे ऐसा लगता है। नो, दैट्स अनट्रू, ये झूठ है। हाँ, Why Shraddha worked with Mr. Bachchan also, no? उससे ज़्यादा न्यू, वो तो न्यू कमर नहीं है। आपका सवाल क्या है? डायरेक्टली पूछो। ऐसे घुमा मत। हाँ? मेरी तो हो गई साइन यार। I think people don't know, but I would like to officially announce that I have signed a film with Saif. Deenu मैं बताना भी नहीं चाहूँगी उस दिन मेरे क्या इमोशंस थे। So I have signed a film with Saif, who is my favorite actor. Deenu is directing that film, who is Dinesh Vijan. He is Saif's partner. So yes, I have signed a film with him. And you said that the issue of actresses can't be friends this year is fading away. We saw you at the Asian screen, and you, Shraddha and Alia have constantly been pitted against each other. I don't know why, because we are great friends. I don't understand why, really. And it's very strange कि people say actors can't be friends. In fact, we only chill with each other. Like even today is Arjun's birthday, we'll all be chilling and partying together. It's just we are together at parties all the time. So I don't know why there's this thing of being against each other, because it's not true at all. So Alia and Shraddha, it's like very good. Yes, very cool, very cool. परिणीति कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म का आपने ऑडिशन दिया हो और बाद में आपने वो फिल्म नहीं की हो, जिसका पछतावा हो, बाद में फिल्म नहीं हुई हो, कोई ऐसी फिल्म? एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर के बाद मुझे कोई ऑडिशन देना नहीं पड़ा, क्योंकि आई थिंक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो मेरी फिल्म शायद देख चुके थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बुलाया और उसके लिए ऑडिशन नहीं हुआ। लेकिन नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आई थिंक जिन पिक्चरों को मैंने नहीं कहा है, आई थिंक मैंने ठीक डिसीजन लिया था अपने लिए। कोई ऐसी फिल्म है जिसमें आप खुद अपने आप को देखना चाहती हैं, जो लेटली कोई ऐसी फिल्म देखी जो आपको बहुत पसंद आई? मैं हमेशा कहती थी बर्फी। आई थिंक बर्फी एक पिक्चर थी जो हर एक्टर को करने का मन है, क्योंकि वो रोल्स ऐसे कभी लिखे नहीं थे और आई डोंट थिंक इसके बाद कभी लिखे जाएंगे। तो आई थिंक बर्फी इज दैट फिल्म। यस, वेरी मच, वेरी मच। परिणीति, आप सिनेस्टार को जो शो है आप देखेंगी रोज? आई होप सो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखने वाली हूँ। आई स्वेयर कुछ टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं बहुत सारा टीवी देखूँ। आपके बहुत सारे जितने भी शोज हैं मैं देखना चाहती हूँ। आई स्वेयर मुझे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टाइम नहीं होता है। टाइम ही नहीं होता है यार, बिल्कुल टाइम नहीं होता। She was famous when you debuted in the industry. But somewhere her stardom influenced your success in the industry. गाइस सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। Okay. One second. So I remember you saying that you were managing Rani when Manish told you to audition Yeah. for ladies versus Yeah. well. So and you told Rani that you're Priyanka's sister. Yeah. So do you think Priyanka's stardom somewhere affected your success today? I don't know. I seriously don't know, because I mean you guys must have watched my films.
Do you get affected by the fact that I don't think so. I don't think audience जब 300 रुपये खर्चती है टिकट पे, वो ये नहीं बोलते अच्छा मैं इसको पसंद करूँगा क्योंकि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है. I don't think they get affected, and that's the only thing that matters. So I don't think somebody's relation can affect your success at all. That's what I genuinely feel. This is the जी सॉरी एक सवाल अभी हुआ है. सॉरी 1 सेकेंड. हाँ मैंने उनसे एक्चुअली एक बार एक पार्टी में बोला था कि मैं आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उन्होंने बोला था इट्स ओके. तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अप्रूवल मिल गया, अब मैं इनकी फ़ैन बन सकती हूँ. बट दे आर वेरी स्वीट. आई थिंक सब लोग खुश हैं क्योंकि सबको पता है कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन थी उनकी. तो मेरे मतलब सब लोग ही खुश हैं एक्चुअली. But you supposed to work with young directors, young actors also. I don't think there's any. Last question. Okay, last question. On popular demand, your question. Last question. सब चाहते हैं आपका सवाल सुनना. मैं फिल्मों के अलावा आपसे कुछ जानना चाहती हूँ. बजट आने वाला है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट को लेकर? रेल बजट आ रहा है. आपकी कोई रेल के साथ मेमोरीज है, एनी ट्रैवल मेमोरीज, और प्रोबेबली आपको लगता है आम बजट को लेकर कोई? आई थिंक हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, और मुझे ऐसा लगता है अगर बजट उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एक्चुअली अगर वो बढ़ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू.